Hello student, once again welcome. Today we are going to discuss mathematics standard 8 chapter number 3 understanding quadrilateral. We already discussed this in our exercise sessions also, but before that I want to take some more detail about the quadrilaterals introductions. Before starting our today's sessions, let's do some physical exercise. Physical exercise will help you. The things which you are going to discuss is here. What is a polygon? First of all, you have to try to understand what is a polygon. Students, this is given as a symbol to keep it in your memory. See students, this is a geometrical topic. We should have to know about the line segment, line, ray, vertex, angles, curve, all the norms we have to know. Yes, polygon is a closed plane figure. Closed figure, yes, you remember the word closed figure in lower standard. You all are knowing closed pictures. Yes, bounded by 3 or more than 3 straight sides. Yes, you remember try to understand the word. That meet in pair in the same number of vertices. Vertex and vertices, it's a plural, and do not intersect other than at these vertices. See, I am drawing here. What is the shape of this picture, students? Yes, you are right, my dear student. This is the triangle. Yes, 3 sides it has. 1, 2, 3. How many points it has? Vertex 6. One angle A, B or C. We are giving the name also, na? A, B, C, which is saying the triangle. 3 side, 3 angle, that's why it's a triangle. A smallest polygon. Now look at here, other picture. Yes, you are right, my dear student. This is a 4.4 lines. Give the name P, Q, R, S. In any one direction you have to move. Don't mix here and there. 4 lines. 1, 2, 3, 4 lines. Angles. Here in a triangle, 3 angles were there inside. Here 4 angles. 1, 2, 3, 4. 4 means quadrilaterals. Our lesson name is there. 4 sides, 4 plane. More than 4, 5 is there, 6 is there, so many are there. We will discuss further. But try to understand what is a closed picture. This is a closed picture, student. This is a closed picture? No, this is not a closed picture. Okay. Is it a closed picture? Yes, this is a closed picture, but this is not any polygon. Sides are needed. Straight line. Is it a straight line? No. See, this is the closed picture, but this is not a polygon. So whenever you are giving the definitions, clarify each and every word. Now here I am giving some regular polygons. Yes, polygon are also 2 types. Regular or irregular. Regular polygon means it has equal sides and equal angles. A regular polygon has both sides and angles are equal. Student, here equilateral triangle you are knowing very well. In 7th standard you already studied about this one, equilateral triangle. 3 sides, all 3 sides are equal. That's why you are putting here sign. 3 angles are also equal, beta. Yes, 60, 60, 60.
What about the square? Yes, square has four sides are equal, and four angles also are equal. Yes, very good student. A pentagon, this is a regular pentagon. 5 sides are there. In the sign of this one, we found these types of sign. You will understand this is a equilateral pentagon. 5 means penta. Whenever there are 6, then it's called the hexagon. Yes, students. Some are drawing like this also. Don't worry. This is also same one. Ulta kar diye beta. Okay? Correct. Then after the heptagon. Can you see your heptagon? Hexagon ke baad hepta. How many sides it has? Count it. Yes, 7. Okay, next figures are also given. Octagon, 8 sides are there. Nonagon, nanogon also you can, some are saying 9. And decagon, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 sides are there. Good. So these are the regular polygon. Polygon that are not regular. ये सब polygon है, सभी लाइन से बने हुए बेटा. बने हैं लाइन, ये भी लाइन है, 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 ये भी, और क्लोज भी है. बट सभी की साइड अलग अलग है, सभी का एंगल भी अलग अलग है, कोई बड़ा है कोई छोटा है क्या नहीं? नॉट ए सिंपल वन, दैट्स आर इरेग्युलर. हम बोलते हैं इरेग्युलर स्टूडेंट, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है. रेगुलर मीन्स डेली कमिंग आता है, पक्का आता है, टाइम पे आता है. यस. Look at here, a quadrilateral. Just now I said quad means 4, lateral means side. 4 sides होगी, उसके बारे में हम सोचते हैं. तो आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया है एक ड्राइंग करके. I kept here all the things quadrilaterals, trapezium. What the shape of trapezium? You can get the idea here. Okay, let it be discussed afterward. But first one is parallelogram. Symbol of parallelogram means parallel lines. Yes, I said first lines. Parallel lines and perpendicular lines. These are the parallel lines. Perpendicular lines means one line and second line is exact 90 degree. It's called the perpendicular lines. They are cutting at perpendicular line. Here, they are moving continuously. The distance between this here remain the same. यहाँ पे जितना distance है उतना इतना distance रहेगा. इधर 5 है तो इधर भी 5 होना जरूरी है. Okay, parallelograms. Pair, this is a one pair and suppose this is a second pair. This is my first pair, this is my second pair. Both pair are parallel. Angles का बाद में सोचेंगे बेटा. Pair should be parallel. It's called the parallelogram. It has two parts. It's a rectangle, rhombus or square. सब में ये पैरेलल रहते बेटा. ओके, क्लियर? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, rhombus, squares, you will hear number of words in this lessons. ट्रेपेजोन का टॉप में देखो तो ट्रेपेजॉइड एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड. उसमें क्या होता है बेटा, एक ही पैर पैरेलल रहती है. देखो दिखाई देती है. ओके, आपको डाउट है तो मैं फिर से कौन सा कलर ले लूं? आप बोलो ऐसा कलर ले लो, ग्रीन ले लूं. ओके, ग्रीन लेता हूं. चलो, तो ग्रीन में देखो इधर दिखाई देता है आपको. यस, पैरेलल. दिस इज ऑल्सो पैरेलल. इसमें सब में देखो, देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है. इसके साथ ये भी पैरेलल है. देखो इधर ये दोनों पैरेलल है. नो, ये नहीं है. इसमें ये किस साइड ये है पैरेलल. यस, स्क्वायर में तो आपको मालूम है ऑल साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. इधर एक ही पैर पैरेलल है, दूसरी नहीं है. बात खत्म. ट्रेपेजॉइड में एक नया टाइप आ गया है. ये क्या चीज है बेटा, आपने देखी होगी. यस, काइट. काइट, एवरीवन लाइक दिस वन. इट हैज सम प्रॉपर्टीज, वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. गुड. तो ये फ्लो चार्ट बोलते हैं इसको बेटा, क्वाड्रिलेटरल का. दिमाग में रहेगा. वी विल डिस्कस इन द पर्टिकुलर डेफिनेशंस आल्सो इज देयर. सी, पिक्चर इज गिवन. पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम, green color is given here. Opposite sides are equal and parallel. सामने सामने की साइड की साइज इक्वल होनी चाहिए. Opposite angles are equal. That means
आई वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ पेन फॉर ग्रीन, रेड कलर बना दिया बेटा। ये साइड और ये साइड कैसी है, पैरेलल है, दोनों की साइज कितनी है, ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा, अपोजिट साइड्स। ये 2 है तो ऊपर वाला भी 2 रहेगा। एंगल के बारे में सोचो, ऑपोजिट एंगल, इसके सामने ऑपोजिट वाला कौन है बेटा, इस एंगल के सामने ये वाला है, ये दोनों का एंगल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे ये 110 डिग्री है तो सामने वाला भी 110 रहेगा, ये वाला 80 है तो उसके सामने वाला भी 80 रहेगा। पक्का समझ गए, फिर से समझाओ? ओके, वेरी गुड क्वेश्चंस, बराबर है बेटा, आपको ऐसे ही करना चाहिए तो ही समझ में आएगा। मैं बड़ा सा ड्राइंग करके दिखा दो बेटा, सी, ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया बेटा। ये मेरी 5 की साइड है तो ये भी 5 की रहेगी, ये मेरी 6 की साइड है तो ये 6 की साइड रहेगी बेटा। ये मेरा एंगल है 80 का है तो सामने वाला एंगल कितने का होना चाहिए, 80 का होना चाहिए। पक्का, दैट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। गुड, look at here, all sides are not equal but all angles should be are equal, parallel, opposites angle are equal। rhombus के बारे में सोचते बेटा, what is a rhombus, how to read out as rhombus, opposite sides are parallel, वो तो समझ गया, all sides are equal, इसमें एक बात है खास, सभी साइड इक्वल होनी चाहिए। हाँ, स्क्वायर और rhombus में वन डिफरेंस इज देयर, स्क्वायर है ऑल 90 डिग्रीज एंगल्स, हियर नो 90 डिग्री, ये आगे पीछे हो सकता है बेटा, बट सामने सामने वाला इक्वल होगा, पहला रूल। यस, रेक्टेंगल के बारे में सोचते हैं, आपको पता है, फिर भी आपको दिमाग में तब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, 5th स्टैंडर्ड में 4th स्टैंडर्ड में रेक्टेंगल का दिमाग में नहीं रहता था, स्क्वायर का कैसे लिखते थे, कुछ इसमें से इसमें चला जाता, इसमें से इसमें चला जाता था। ओके, डेफिनेशन इज हियर, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसे हम सोचते थे रेक्टेंगल में, तो पता है ईच एंगल इज एट राइट एंगल। तो स्क्वायर में क्या डिफरेंस है बेटा, स्क्वायर में है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें एक ही डिफरेंस, इसमें ऑल साइड्स लिखा है बेटा, ऑपोजिट साइड तो रहेगी, पैरेलल भी रहेगी, इसमें सिर्फ ऑपोजिट साइड रहेगी। ये मान लो कि 6 की है तो ये 5 की रहेगी, तो ये सामने वाले कितने की होनी चाहिए बेटा, 5 की होनी चाहिए रेक्टेंगल में। ये 6 की है तो सभी जगह पे 6 रहेंगे। ये पिक्चर में थोड़ा ड्राइंग ऐसा कर दिया लेकिन स्क्वायर दिखाई नहीं देता है, आपको मालूम है स्क्वायर कैसा होता है। के बारे में सोचो बेटा, एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, इसमें क्या रहता है बेटा कि ये जो साइड है मैं ग्रीन कलर कर देता हूं, ओके, ये साइड और ये साइड बाजू बाजू वाली साइड इक्वल रहती है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसके बाजू वाली साइड ये है, ये पॉइंट की इक्वल है, बराबर बेटा। 2 लाइन कर दे तो आपको पता चलेगा, वरना जैसे एक एक कर देगा तो इसका मतलब है सभी साइड इक्वल है। सो मैथमेटिक्स ऑल्सो सम हैव रूल्स, that is my mistake, suppose I am showing here, okay, when I am explaining you are here, but whenever somebody are coming over here and seeing, oh, this is a wrong, who is teaching this thing, all sides are equal, no, so I have to specify with this one, double line means these 2 lines are equal and these 2 lines are equal. Mathematical notations are very very important, a small mistakes make a very big trouble. Good. Now next one, trapezoid, trapezium, only one pair of opposite sides are equal, parallel, पैरेलल का मतलब फिर से मैं समझा दूं स्टूडेंट्स, 2 लाइन जा रही है, दोनों स्ट्रेट जा रही है, दोनों के बीच का गैप सेम होना चाहिए, इसको पैरेलल बोलते हैं। यस, रेलवे ट्रैक महुआ में जितनी है उतनी भावनगर में रहेगी, ट्रैक का गैप बराबर है ना, तो इसके ऊपर गाड़ी चल सकती है, ट्रेन चल सकती है। ये महुआ में छोटी है, भावनगर में बड़ी हो गई, तो उसके ऊपर ट्रेन चल सकती है। हाँ, बिफोर दैट देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्स वेयर देयर, बट देयर आर मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज, उसका भी मेजरमेंट पक्का था। ओके, वेरी गुड। चलो, तो डेफिनेशन भी देखा, पिक्चर भी देखा, प्रॉपर्टी भी देखी, तो आगे देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल के बारे में ज्यादा देखते हैं, रोम्बस के बारे में भी देख लिया। आई हैव ऑल द पैरेलल प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम प्लस 4 राइट एंगल्स, डायगोनल्स, कॉन्ग्रुएंट। एक नया वर्ड आया बेटा, डायगोनल्स।
सपोज दिस इज स्क्वायर और ए रेक्टेंगल, ये मान लो आपको दे दिया नाम उसका ABCD, यस वेरी गुड, 4 names are there, ABCD quadrilateral, 4 letters only, capital letters. So nearby node, that afterwards you have to draw a line, that is a AC, it's a one diagonal, BD, B to D, that is a second diagonal. कॉन्ग्रुएंट का मतलब जितना साइज इतना होगा ना, ये मान लो कि 4 का है तो ये भी 4 का ही बनेगा। इज इट क्लियर? कॉन्ग्रुएंट दोनों सेम है साइज में। नेक्स्ट का देखो रोम्बस के बारे में देखते हैं। तो रोम्बस का क्या होता है? आई हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम प्लस 4 कॉन्ग्रुएंट साइड है, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल, बाइसेक्ट मींस बेटा यस दिस इज माय डायगोनल्स, बाइसेक्ट 90 डिग्री, बाइसेक्ट एंगल्स 90 डिग्री, 90 डिग्री पे काटेगा। यस हियर ABCD आर गिवन, ए एंगल, सामने वाला एंगल सेम है, इसके लिए ए दिखाई दिया बेटा। इधर देखो ए तो इधर भी है, इधर बी, इधर बी। सिंबल इज शोइंग यू ऑल साइड्स आर इक्वल एंड हियर दिस सिंबल शोज अस ए 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर। काइट के बारे में हमने बताया था बेटा, देखो मैंने इधर सिंगल लाइन बनाया, ये दोनों साइड इक्वल है, दिस साइड्स आर आल्सो इक्वल, दैट मींस डबल वन। ये जितना एंगल रहेगा बेटा उतना ये एंगल रहेगा, यस ये एंगल जितना रहेगा ये एंगल इतना रहेगा। ये दोनों डायगोनल है वो इक्वल नहीं है बेटा, ये लंबा वाला है, दिखाई देता है यस, बट जब दोनों काटते हैं तो वो 90 डिग्री पे काटते हैं। इट इज कटिंग ऑन ए परपेंडिकुलर। यस ए काइट इज ए क्वाड्रिलेटर whose 4 sides can be grouped into 2 pairs of equal lengths sides that are adjacent to each other. Quiet quadrilaterals are named for the wind-blown flying kites, which often have this shape. That's why हम चकाते हैं ना पतंग, यस पतंग चकाते हैं, वो इसका शेप, इसके लिए नाम दे दिया काइट। उसमें सब में स्क्वायर रेक्टेंगल वो सब दिया था, इसमें काइट दे दिया, रोम्बस बड़ा है तो काइट अच्छा है। 2 pairs of the adjacent sides of a kite are equal in length, just now we discussed. 1 pair of opposites angle, the ones that are between the sides of unequal length are equal in size. One that bisect the other, bisect means exactly cutting. Diagonals intersect at right angle, yes इसमें भी दिया है। और एक बात बताना भूल गया बेटा कि ये जितना एंगल है इतना नीचे वाला एंगल नहीं रहेगा, मैं बताना भूल गया था। ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, ये एंगल दोनों सेम नहीं रहेंगे, ये दोनों एंगल सेम रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट ये कंपलसरी होना चाहिए। क्लियर? वेरी गुड, आई क्लैरिफाई दैट पॉइंट। ट्रेपेजियम के बारे में सोचते बेटा, ट्रेपेजियम क्या होता है? पैरेलल लाइंस सिंगल going in this direction, size no, going continuously, yes. What is a trapezoid and isosceles? Trapezoid, isosceles में 2 एंगल्स कॉमन रहेगा, सेम होना चाहिए साइज। देखो इधर दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आपको मालूम है, यस वेरी गुड स्टूडेंट, दिस इज माय आइसोसेलेस। ये और ये साइड दोनों इक्वल है, साइड में ये 2 एंगल रहेंगे वो भी इक्वल रहेंगे बेटा। तो इधर भी ट्रेपेजोइड में आइसोसेलेस के बारे में सोचते तो 2 इक्वल होने चाहिए। यस ए ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटर व्हिच हैज एट लीस्ट 1 pair of parallel sides. Both pair are not there, 1 pair should be parallel. It is called an isosceles trapezium if the sides that aren't parallel are equal in length and both angles coming from a parallel sides are equal, just now I shown here with green color. Note, trapezium is UK terminology and in US terminology it is called as trapezoid. Very good, 2 topics I want to say, trapezoid and trapezium. लंदन में ट्रेपेजियम बोलते हैं, अमेरिका में उसको ट्रेपेजोइड बोलते हैं, कोई बात नहीं, हमको तो क्या है ट्रेपेजियम बोलेंगे, because we are following UK Britishers, that's why. Good, very good, very good. Rhombus के बारे में देखो बेटा, rhombus is what? A rhombus is a parallelogram with adjacent sides equal. The properties of rhombus are, a rhombus has the including properties of a parallelogram.
The diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. The diagonals of rhombuses bisect opposite angles. Yes, my dear student, you are right. Correct. See the pictures of rhombus. बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से इसके टाइम लेंगे हम, आपको पूरा पता चल जाएगा. कोई भी एक पिक्चर पे आप फोकस करो बेटा. यस. Here they are writing the name ABCD in this direction. No problem. A, B, C, D. Good. I said A to C one line. What is called this one? Diagonal. D2. Diagonal 1 is here. D1. Okay, I am removing. Second notation you can find out here. Notation. See. Double line. Double line. Double line. Double line. You can put single line also, no problem. But everywhere double line is there. That means this A to B, B to C, C to D or D to A. All sides are equal. Suppose this is a 6 centimeter, this is also 6 centimeter, this is also 6 centimeter, this is also 6 centimeter. Through this notation we can get the idea. See, I found a SSC students, they are not having this concept clear still now. इसका मतलब क्या है उसको पता नहीं चलता बेटा. So many students, I am not telling about all. So many students having not concept clear about this one. If I will say write down 10 sentences from this picture, they cannot write a single statement. इसमें से आप देख सकते हैं कि इसकी 4 साइड लिख देते. जैसे 4-sided figure, all sides are equal. The name of picture is ABCD. The diagonal is AC and AD. इतने सेंटेंस बन के गए बेटा. ओके, इसका मतलब आपको समझ गया. अच्छा, इसका मतलब आप समझे बेटा. एरो का एक एरो, ये एरो, इधर डबल एरो दिखा है बेटा. क्यों ऐसा किया? The meaning of this one is this line and this line are parallel, and this line and this line are parallel. See, I will make it a different color. ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है. नाउ कलरफुल मिल गई. पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल. डायगोनल के बारे में क्या बताते बेटा? डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. ये दो डायगोनल है मेरा, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2. जो आप काटते हैं वो 90 डिग्री बनाता है. इधर 90 है तो इधर भी 90 बनेगा, इधर 90 है तो इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा. ऑल जगह पे 90 90 90 बन जाएगा बेटा. कितने सारे पॉइंट्स हमने बना दिए बेटा. यस. एबीसीडी आप इस तरह से भी दे सकते बेटा. ए बी सी डी, बट डायरेक्शन शुड बी सेम, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घुमाते रहने का. हाँ, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि सर मैं इधर ए लिखूं, बी इधर लिखूं, सी इधर लिखूं, डी इधर लिखूं. लिख सकते, लेकिन देयर इज नॉट ए प्रोटोकॉल. आपकी मर्जी. इज इट गुड? रोड बनाए तो रोड पे चलेंगे या पेड़ पे चढ़ के जाएंगे? यस. वॉट एवर द रूल्स आर द लेफ्ट साइड वी हैव टू walk or left side we have to drive in India. But if in America you are going and driving on left side, police will come and catch you. That side, right side is you have to drive. So whatever the rules are there, we have to follow. Oh, very good beta. Now look at here, angle sum property of a quadrilateral. Very good topic is here. Angle sum property beta. How many angles are having a quadrilateral? It's square, rectangle or whatever is there. It's a 360. How it is a 360? In a very simple way I can teach you. See, this is my square or rectangle or any rhombus, जो भी है देखो समझ दो. उसको बीच में से काट दो बेटा. What can I find here? I am finding here one triangle ABD. Here BCD. 2 triangles are there. Is it or not?
यस। अच्छा, ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते बेटा? 3 एंगल होते, बराबर है। ये 3 एंगल है। 3 एंगल का सम कितना होता था बेटा? 180। तो चलो इसका 180 है, तो इसका कितना रहेगा? 180। ये दोनों को प्लस कर दो, कितना रहेगा बेटा? 360 डिग्री होना चाहिए। तो रोम्बस का, पैरेललोग्राम का और क्वाड्रिलेटरल का हम बोले तो उसका कितना होगा बेटा? 360। इजीएस्ट मेथड देखो, एक ही टॉपिक में समझा दिया। इधर 6 एंगल बताए थे, 6 एंगल का आपको समझा दिया। ट्राइंगल 3 है, देखो एंगल्स बन गए, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल और 6 एंगल। एंगल 1 2 6 का टोटल किया तो 1 कितना मिला मुझे? 180 मिला। एंगल 3 4 5 का किया तो कितना मिला? 180। बट मेरा तो पिक्चर पूरा है। 180 प्लस 180 कितना हो गया बेटा? अभी भी किसी को डाउट है, मैं प्लस करके दिखाता हूं बेटा। 0, 8 प्लस 8 16, 1 is the carryover, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 360 degree, 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 degree. Don't forget to put the degree sign. Yes. So here angle sums always 360 of quadrilateral. Sum of 4 sides of quadrilateral is 360 degree. Understood? Now what about the interior angle and exterior angle? Last topic we are going to discuss, students. Yes. See, here I am taking the example of pentagon, and you can find a blue color and red color. What is the picture? 2 words are written, external angle and internal angle. Suppose I am drawing here square, rectangle, whatever things I am drawing. Here outside I am taking one line. चलो, तो ये 100 एंगल बना ना, वो इंटरनल एंगल है। अंदर की साइड वाला एंगल है सब इंटरनल है। पिक्चर के अंदर वाले इंटरनल एंगल्स विथ रेड कलर। एक्सटर्नल एंगल्स में ड्रॉ कर रहा हूं बेटा विथ ब्लू कलर। ये मेरा एक्सटर्नल एंगल बन गया, बाहर की साइड बनता है एंगल। सी 1 2 3 4 5। पेंटागन है 5, इंटरनल है 1 2 3 4 5। So internal angle, external angle. One more thing I want to teach you. Sum of internal and external angles for anywhere, for any polygon, it's always 180 degree. Why 180? Straight line, कोई भी straight line का एंगल 180 होता है बेटा, आपको पता है। ये भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, सभी का all angles of interior and exterior are 180। और उसका दूसरा नाम है यस लीनियर पैर। ये लीनियर पैर बनाता है, उसका भी 180 है। और एक वर्ड है उसका आपने पढ़ लिया था 7th स्टैंडर्ड में, यस सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री का है 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री। करेक्ट। So here you have a clear idea regarding interior and exterior angle. और एक मजे की बात है, मैजिक, अंडे का फंडा। Sum of external angle always 360 डिग्री। ये 5 है तो 5 का टोटल करो तो 360 होगा। स्क्वायर लिया 4 बनेगा, 360 बनेगा। हेक्सागन ले लो, 6 में आउटसाइड का एंगल ले लो, 360 बनेगा। और 360 किसका है मालूम है आपको? सर्कल का। यस। नाउ लास्ट टॉपिक हियर वंस अगेन, हाउ टू प्रूव इट 180। सेम पेंटागन इज हियर स्टूडेंट। मेरे पास ये पेंटागन है बेटा, यस ये वाला पेंटागन है बेटा, यस। नेम आपको भी दे सकते, मैंने नेम नहीं दिया इधर। मेरा एंगल जो इधर से इधर तक का है बेटा, ये एंगल है मेरा 65 का है। तो ये बाहर वाला एंगल कितने का रहेगा? मैं रेड कलर कर देता हूं उसको। ये वाला एंगल कितने का रहेगा? ढूंढ को निकालने का है। तो हमको पता है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, इज इट? और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना रहता है बेटा? 180। मेरे पास ये है 65, 180 है मेरे पास टोटल, उसमें से मैं 65 को माइनस कर दूं, नहीं दिखाई देता है? ओके 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 180 डिग्री दिखाई देता है अभी, -65 डिग्री।
कर सकते बेटा, इधर 0 लगा दो. पुट द प्रैक्टिस. सो मेनी स्टूडेंट्स आर स्टिल मेकिंग मिस्टेक. ओके, 0 minus 5 not possible. Cut here. 7 10 10 minus 5 5. 7 में से 6 गया, कितना बचा बेटा? Yes, 1. 1 minus 0 1. So answer is 115. इजी, समझ में है कैसे लिया? ये स्ट्रेट एंगल 180 का रहता है. सब रिमूव कर दिया. देखो अभी आपको क्लियरली दिखाई देता है, कलरफुल. इधर से इधर तक का 180 है स्ट्रेट लाइन का. यस, इंटरनल एंगल इज 65, तो एक्सटर्नल कितना रहेगा? यस यस यस, यू आर राइट माय डियर स्टूडेंट, परफेक्ट. तो हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देखे, इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, डायगोनल्स, साइड्स, उसके सब के बारे में इंट्रोडक्शन कर दिया. ये सभी चीज का हम यूज करेंगे कहाँ पे? अपने एक्सरसाइज में. वी विल यूज दिस ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रॉपर्टीज इन आवर एक्सरसाइजेस and so find the solutions for each and every question in next sessions. Till there, bye bye, take care, be safe, stay at home.